सबको साथ नमस्ते। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आज हमारे अगस्त 2022 की पहले सोमवार को हमारा ईश्वर उपासना परिवार का मासिक मिलन। तो आज सबसे पहले सभी जी अपनी एक प्रस्तुति देंगे। जैसे मैंने कहा था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है एक यूरोप की एक पत्रिका के लिए, तो उसका कुछ सारांश और भाव या जैसा उचित समझेंगे। शीर्षक है उसका योग और आयुर्वेद। आइए बहन जी, सभी जी। सबको सादर नमस्ते. I'm so sorry I have not been able to summarize Acharya ji. So since it's quite an elaborate thing and it's nothing that you people, आप दिग्गज लोगों को नहीं पता, it's just repetition of what you all know. So I'll just quickly skim through or just read through, and whatever is left, probably we can take it in the next meeting of ours. So I'll just excuse me for this. My daughter is not keeping well, so I'm just in two places right now. So yeah, so to begin with, I want to thank Acharya ji for giving me this opportunity. He asked me to write this, and it was quite a revelation for me also when I was writing. As you all know, writing is a process that is, again, it comes from divine, I guess. So the title is Ayurveda and Yoga. And when I was writing, I just couldn't write for so long. I just couldn't write because I was waiting for that right seed of an idea. And so what the title, then I made it as whose knowledge is it anyway? Like from Ishvar-Upasana, whose wealth is it anyway? So it is Ayurveda and Yoga is the, I suppose, the greatest wealth that humans have been endowed with. So the title goes like Ayurveda and Yoga, whose knowledge is it anyway? So while I was waiting for some divine inspiration and the seed of the idea, as I said, for this writing project, it was just the International Yoga Day when the inspiration presented itself in front of me. And that was from my little one, when she started talking to me and she was like, I said, you know, today is International Yoga Day. So she said, oh, so does that mean everyone in the world will be doing yoga? I said, yes. So you mean everyone? I said, well, almost. Then she continued that, oh, all continents, all countries, Africa, Europe, China, Australia. I said, yeah, I suppose so. What about mosquitoes, cows, monkeys, elephants, mama? Do snakes also, they know yoga? So that's what got me thinking, and that's where my idea came from. So before we broach the heavy subject of yoga and Ayurveda, the two very ubiquitous words and the forms that we know they have taken in today's modern world, it would just be interesting to start from a question, which will give a meaningful perspective. That is, instead of asking what is yoga and Ayurveda, instead of getting into the deep dive of what is yoga and Ayurveda, I started with let's ask who is it for and why. So obviously we all will just quip, okay, of course it's for human. I mean, gender, nationality, caste, creed, religion, no bar. It is for humans. But why is it for humans? Why not animals? After all, we have many things in common with our biped and quadruped friends. So that got me thinking again about a shloka. We all must have heard this very, very famous one. Ahar nidra bhai maithunani samanyam etat pashubhi naranam janam naranam adhiko vishesho janam hina pashubhir samana. So the first line itself clearly states that what is common between us and our animal friends, that is
eating, sleeping, fear, and procreation. Then what is it that makes us, always strut and swell with pride? What is it that differentiates us from other species? The second line very explicitly Jnan, the Vidya. We have been endowed with knowledge and superior intellect to learn and evolve. And if we do not make use of this knowledge gifted to us without any copyright or IP right conundrum, then we are just as good as our animal friends. Being born as human to get the superior tool of body, mind, and intellect is indeed a privilege. And it is like getting a pole vault to make that huge leap across the vicious cycle of birth and death. I remember that cycle which Kavindraji in his write-up he had mentioned. So we can just imagine the analogy of a pole vault. So this tool given to us. But then again, a question comes to us, why do we get into this birth and death cycle? Going back to Kavindraji's write-up, that is because of our karmas, our actions. Only humans are gifted with the free will and agency to do karma as they wish, good or bad, their choice. Animals don't have this privilege. They're born to meet with the consequences of their wrong actions of previous lives, the bhog, and they have no scope of learning or evolving into superior beings or doing anything much beyond what they are programmed for. Humans are also called as Abhimani Jeev, on the other hand, are entitled to Jnana, Karma, Bhog of a wide variety. Not only are we born to bear the fruit of our good and bad actions in form of Jati, Ayu, Bhog, where Jati means we all know that it is species in which one is born. That is fixed at birth and cannot be changed throughout our lives. But Ayu and Bhog, that is our lifespan, and the pleasures and pains that we get throughout our Ayu, that can be upgraded or degraded as per our current actions or previous ones. But we are to learn and evolve to a higher level of existence. But still, there are many intelligent beings amongst us. And many of us may just argue that being an animal is way better than human being. At least in current scenario, we can very well say that. And I mean, just look at the birds, for example. They have the freedom to do whatever they want, whenever they want, fly above all. What a wonderful life. Well, fair enough. But if we observe closely, our avian friends adhere to their intelligent design to the T with a little scope of deviation from what they're programmed for. A rooster would crow at the break of dawn. An owl would hoot at night. A hawk will not feed on berries. A parrot will not scavenge on a dead. A kiwi will build a burrow to lay eggs, while a weaver bird, even though it has exemplary craftsmanship, it has been weaving its beautiful nest the same way as it did centuries ago. And now let us just look at ourselves. We wake up when we want, we sleep when we want. When it comes to food, we have a smorgasbord of delicacies to whet our appetite. We eat when we want, rather, I would say we eat all the time, not just when we are hungry. We travel far and wide, we sail, we swim, we fly, we build fancy homes, homes that keep us safe from vagaries of weather. Our designs and creations evolve as per our need and time. Now, which one do we think we can call as freedom? The aforementioned or this one?
Well, the great scientists of yore, that our rishis, did just that. And if you think the former is better, then probably we should imagine a prisoner's life. And that's what our rishis did. They just observed and they asked real questions, the hard ones, and sought answers and realized that even a human birth is no less than a prison, a misery, agony. So, since time immemorial, the prime focus of our species has been to attenuate our miseries and alleviate our sufferings and pain. It still is, and it always will be. Ask anyone, and you'll find the basic premise of why they're doing what they're doing. I mean, even look at all of us, we are sitting here and talking today. Why we are doing what we are doing is because we seek that anand, the joy, the everlasting pleasure, and want to steer clear of any kind of agony. The material world has been going in circles to find that elixir of life, the eternal bliss, to no avail. But the great seers, due to their inquisitiveness, penance, and deep resolve to find answers to life's real problems, they unraveled the biggest mysteries of origins, of existence, that no modern scientist has ever even come close to solving. They realized that human birth, despite being a crucible of suffering, is also the only window to escape from all kinds of suffering that we call as the Trividh Dukh, Adi Devik, Adi Bhautik, and Adhyatmik, and to achieve the main purpose for which we keep getting sent into the world again and again. A scientist is inquisitive in nature and has a fervent desire to get to the root of the problem. The primeval rishis, the greatest scientists of all times, after having got the Veds Jnan, the ultimate and the true source of all knowledge, revealed to the sages at the beginning of creation. Those sages passed it on to their disciples through oral tradition, and they further passed it on to their disciples till it reached the common man through their oral narrations and written works. So those rishis in that deep meditative state, which we call a samadhi, did the root cause analysis, and they got to a profound conclusion. It was like a eureka moment. They found out that the real reason behind the cycle of birth and death is primarily ignorance, avidya. Hence, the only way out of this vicious cycle is to get rid of all the ignorance and be the seeker of ultimate, absolute, universal, rational knowledge. It purifies and strengthens the spirit, which will in turn bring us closer to our being and the Supreme Being. It again came as a flash to me that lessons in life will be repeated until they are learned. A great teacher is the one who ensures all her pupils have learned all the lessons she had to teach them. The benevolent, impartial teacher works tirelessly to ensure that her students understand the lessons they ought to learn, or else they will go in a loop and keep repeating the lessons. An apt analogy for why we are being sent back birth after birth after birth. We have yet to learn our lessons well. The supreme teacher, our generous guru, our supreme father wants us to learn our lessons well and pass with flying colors. Well, until then, she keeps sending us back to the classroom called life. After this realization of the ultimate unchallenging reality, illuminated with truth, the consciousness and bliss, the tender-hearted sages started to hold the hands of ordinary, distressed humans and showed the path of life to entire humanity. Out of compassion, these self-realized souls created ancient Vedic knowledge systems solely to get humans out of the quagmire
they were in and help them realize the supreme purpose of their lives. And these outliers, they dispelled ignorance, avidya, from lives of ordinary humans. That this divine knowledge was encapsulated in easy to assimilate, succinct aphorisms by contemporary sages to show humanity how the world really works. Now, Noam Chomsky or Vaclav Smil's best-selling title, How the World Really Works, might not be able to give a holistic view. Moreover, they wouldn't be able to give answers to the deeply perplexing questions, or wouldn't even look beyond the material world, for the answers to the problem of real life lie elsewhere. Of all the knowledge that was decoded in various texts, the two forms of Vedic literature that have stood the test of time are Ayurveda and Yoga. This divine knowledge is eternal, universal, and is most beneficial for humankind, therefore gaining prominence in the world. We are indebted to preceptors of Ayurveda, mainly Maharshi Charak, Sushrut, and Vagbhat, and Yoga Darshan Maharshi Patanjali for compiling the two universal knowledge systems which help mankind traverse from the outermost sheath of the human body, that is the Annamaya Kosh, to the innermost self, Anandamaya Kosh. With sincere practice, that is abhyas, and detachment, that is vairagya, these Vedic sciences can help transcend all the five sheaths of the human body and help us reach beyond self to meet with the Supreme Guru. The main reason they were formulated. Ayurveda and Yoga are complementary knowledge systems that find their roots in the Vedas. They are the sciences that help us in taking care of the pole. Remember the pole vault analogy? The pole, that is our body, and then show us how to use it for our maximum benefit, which is essential for us to take that leap. Ayurveda helps us in the upkeep and maintenance of the pole. That is the main objective of Ayurveda, and not just fixing the broken ones. Whereas Yoga teaches us how to use that pole for that big leap. Hence, both work hand in hand for strengthening, purifying, and uplifting the human soul so that we rise above the morass. If the pole is broken or misused or mishandled, then we can't go for that gigantic leap. Similarly, if we obsess about the pole or are only engrossed in its upkeep and maintenance and forget the main purpose for which it is to be used, how it is to be used, then also it's a loss-making proposition. So far, I've tried to answer Yoga and Ayurveda for whom and why. If we have time, then I can move on, or I can stop here, Acharyaji, whatever you say. मैंने कहा समय तो है ऐसे, समय है, एजेंडा में ज्यादा आइटम नहीं है. ठीक है, then I will continue. You can stop me when if I'm not looking at the time. आप बता सकते हैं मुझे, तो मैं कहूँगा आप 10-15 मिनट और ले लीजिए. जी जी. So yeah, then quickly I'll just go through just what is this vast, let us just dip a little bit of our toes into this vast, comprehensive ocean of universal knowledge, the twin sciences of Ayurveda and Yoga. It is like a complete package for the complete human, from the gross body to the subtle body and beyond. Ayurveda and Yoga have taken many forms and meanings in the modern world, and they are losing their essence somewhere down the line. Yoga and Ayurveda are not any sort of acrobatics or secret guru mantra or wizardry to be done to us by any third person, or a magic potion to be handed down to us by any physician or a doctor. It is disheartening to see how this knowledge that was given to humans by the Supreme Guru, which then was passed on to the common man by the selfless
sages for free has been contorted and copyrighted as personal property and being sold to the gullible folks like us. These two knowledge forms are as vital as fresh air and water, thus fundamental for existence of every being. No one should have a monopoly over this knowledge or try to hide the source of this knowledge by repackaging and branding it with something out of their own imagination. While I'm writing this, a thought flashed again. So, hence thinking aloud. Are we born blank slates? Do we create knowledge or do we build it from the repository of previous knowledge? Where does that previous knowledge come from? We know that we stand on the shoulders of the people who lived before us, and they stood on people before them till we trace it back, going to the ultimate source. In AyurVeda, the 40th chapter, that's where the title I got from, where they say, Ten tattena bhunjita magrida tasya swadanam. So content thyself in what God has given thee. Don't be greedy, don't covet. Whom does the wealth belong anyway? Knowledge is the greatest wealth humans have been gifted. Whom does it belong? Not talking about the bhautik knowledge, but adhyatmic knowledge, the spiritual knowledge. Where do ideas come from? Ever heard of writer's block? As a writer or creative artist, all I can say is for all our work, we seek the guidance of the Supreme Creator residing within. It is just inexplicable how it happens. Sometimes it is surreal. I don't think we can ever lay claim to any great ideas, not talking about the ordinary or not so great ideas which come from a repository of our previous knowledge, sanskar, memory, storage, etc. The ideas certainly come through us and we feel the joy of being the receptacle, but they certainly aren't ours. Unfortunately, we consider them as our brainchild and claim ownership of the same as a possessive parent. At the risk of sounding naive, I would say knowledge should always be shared for free, not for a price. Knowledge is of two kinds, the one that helps us make our living and one, I'm not talking about the para and apara. So the one that makes us help make our living and one that makes our life beautiful journey that is gifted to us by our supreme parent. If the latter is given priority and made a fundamental right, then it will help take care of all the United Nations SDGs and invest in imparting the true, absolute, universal knowledge that is Ayurveda and Yoga in its original form to all and see the world's woes vanish. Tall order, we have to really be deserving to desire. So just a cursory glance quickly on briefly what is Ayurveda and what is Yoga. So Ayurveda, we have learned a lot about Yoga from Acharya ji. So just giving a cursory glance of Ayurveda. It goes like this in a nutshell, that swasthasya swasthya rakshanam aturasya vikara prashamanam. So this means to prolong life and maintain health, add years to life and life to years in a healthy person, and to eradicate the disease and dysfunction of the body in the sick. Ayurveda is not just a medical system that prescribes medicines the way it has become today, but prescribes a framework for habits and practices to live well, which most of us have forgotten. That is Dincharya, Ratricharya, Ritucharya, and at the center of which is Ahar, Vihar, Vichar, and Vyavahar, that is diets, habits, and lifestyles. Therefore, for all intents and purposes, Ayurveda puts the power of maintaining, preserving health in our hands rather than with the doctors or pills. For prevention is always better than intervention. Swasthya, health, means to be established in oneself and reach the prime goal of life. Yoga
that is samadhi, also means union with self and the supreme. Therefore, unless one is swasth, one cannot do yoga. A Sanskrit shlok states, Sharir Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. That is, this body is the means to greater end that we all need to work towards. Hence, it is imperative to take care of the tool appropriately and keep it healthy to tread the path of Dharma, Sadhana, Upasana, Yoga. What is health? Well, as per Ayurveda, that is also defined in a very holistic way. If we compare it with WHO's definition of health, we'll still find something missing out there. But if we look at Ayurveda's definition, that is samadosha, samagnischa, samadhatu malakriya, prasanna atma indriya mana swastha iti abhidhyate. Comes from Sushruta Samhita. So an individual who is in a state of equilibrium of body's humors, digestive fires, tissues, physiological functions of excretions, and whose spirit, the soul, Atma, senses, the Indriya, and mind, the Mana, all are happy, is considered as a healthy individual. According to WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease and infirmity. Now, if we compare the two definitions of health, we can see for ourselves which one is more holistic. Now, just one more shlok I would say from Ayurveda. Ayu kamana manen dharmastha sukha sadhanam ayurvedopdesho vidye paramadaraha. This is from Ashtang Hridayam, which means the purpose of Ayurveda is to promote health and longevity. A person with healthy long life can only achieve the four purusharths, namely dharma, arth, kam, and moksha. One who desires to have a long, healthy life must follow what Ayurveda prescribes with utmost respect. Dharmarth kam mokshanam arogyam mool amit tamam rogastya paharataraha shreyasho jivitasya cha. The foundation for performing dharma, arth, kam, and attaining moksha is arogya, that is good health. Diseases destroy that very foundation, so one must heed the prescription of Ayurveda. Both yoga and Ayurveda focus on self-realization and realization of supreme and attain bliss and moksha, the ultimate and the most important goal of human life. Both Ayurveda and yoga work in unison to keep our bodies in a state of equilibrium. They use the three gunas, that is sattva, rajas, and tamas, for determining individuals' psychological or spiritual nature. And both emphasize the development of sattva. In yoga, sattva is the higher quality that allows spiritual growth to occur. In Ayurveda, sattva is the state of balance that makes healing happen. So, Patanjali's eightfold path of yoga is step-by-step procedure laid down for a lay person to control the mind, the chitta vrittis. It can be divided into two, that is external yoga, that is to do with purification of body and mind, and internal or subtle yoga, which is an inward journey, where one has to transcend the body and mind to finally be one with self and supreme. The 8 steps to reach the final goal have been carefully laid down by the sage, and one cannot skip any step to reach the next level. It needs tenacity and practice of the first 5 with utmost sincerity to master the last 3. After all, we are the ordinary beings. To conclude, I would reiterate that the twin sciences of Ayurveda and Yoga aren't something that someone ought to do to us, but there are certain codes of conduct of righteous living, physical, mental, and spiritual, self-control over body, mind, and senses, swastha vritas, sadvritas, we undertake for optimal health, vitality to reach the pinnacle of awareness
and evolve to be our higher selves. Most importantly, have a rendezvous with our Creator. Juggling responsibilities while working on self-development and growth can be overwhelming. This makes it even more crucial for us to look after our physical, mental, emotional, and spiritual well-being. And what better way to do this than to live by the principles of age-old Vedic sciences of yoga and Ayurveda. Thank you. धन्यवाद. Very nice. आयुर्वेद और योग पर आपने बहुत अच्छा लिखा है, जन सामान्य को भी समझ में आएगा, और इसमें आपने जो वास्तविक योग के सिद्धांत हैं उसको भी प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा. दोनों ज्ञान का स्रोत भी आपने बताया कि ईश्वर ही सब सर्वज्ञ है, वही हमें टुकड़ों में देता है, और उसी से ईश्वर ने हमें ये सब शास्त्र दिए. आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है इनसे, अभी जो इन्होंने कहा इसके बारे में? जो जिस मंत्र से आपने शुरू किया था वो हमको राइटिंग में चाहिए. हमारे मेरे फादर कुछ गाते थे, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा. You know, I just recall that 30-40 years back. Te kuch रूपेण, I mean, you know, it was the same thing that you said in a different words. That's very nice. इसके दो वर्जन्स मैंने सुने हैं. दूसरा एक धर्म इंस्टेड ऑफ ज्ञान, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग धर्म इंस्टेड ऑफ ज्ञान. So I felt ज्ञान as more apt differentiation between humans and animals. धर्म तो वो भी अपना निभाते हैं और हम तो खैर निभाते ही नहीं है, वो अलग बात है. So I felt ज्ञानी नहीं ना पशुभिर समाना, that kind of. ये मुझे लगता है दो अलग अलग श्लोक हैं. एक जो मैंने 2 लाइन पढ़ी, ये भी किसी ने, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा. वो आठ वो हैं मेरे ख्याल, वो श्लोक है जिसमें वो 8 न ज्ञानम न शीलम न गुणो न, तो वो मुझे आप प्लीज लिखिएगा, मैं उसको भी ढूंढूंगा. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. वेद बहन जी ने अच्छा लिखा है. WHO की डेफिनेशन में मिसिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, while Ayurveda is missing the social aspect. अभी जी आप क्या कहेंगे इसके बारे? सोशल एस्पेक्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब उन्होंने सारा कुछ कवर कर लिया ना. मैं 1 मिनट, आई जस्ट गेट बैक टू दैट डेफिनेशन. सोशल के बगैर तो हो ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं हम तो, आई गेस. बट आपने जानवरों की, चिड़ियों की बात की, कितनी अच्छी बात है. एंड दे आर सो थैंकफुल, यू नो. एक गाय को सूखा चारा दीजिए तो भी करके वो एक्सप्रेस कर देती है, और हरी घास मिल जाए तो भी उसकी लॉटरी है. एंड शी नेवर मिसेस टू गिव मिल्क, एंड ईयरली 1 calf एंड गोबर, एंड दे कितना डेडिकेशन से धर्म निभा के चले जाते हैं. And we are so thankless. Every day, new kind of food, new variety, new taste. Is still not satisfied with what God has given. That's so, जी प्रेम जी, हाँ, इस डेफिनेशन में मतलब पर से if we start searching for that word social तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया. दिस इज ऑल रिगार्डिंग फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें दोष हमारे सब सम होने चाहिए. हमारी अग्नि जो जिससे हमारी सारी धातुएं बनती हैं वो सब, फिर मल और जितने मल के प्रोसीजर जो भी क्रियाएं हैं वो सब सम होने चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए. फिर प्रसन्न आत्मा, तो
मतलब प्रसन्न आत्मा अब हो सकती है जब obviously when I think when we have covered all these checkpoints of physical, mental, social, emotional, तब आत्मा तभी जैसे हमारे वो 5 पंचकोशास जब कवर हो जाते हैं तब हम आत्मा पे आते हैं, आनंदमय कोश पे. तो I'm just guessing they our sages have a great way of being very brief, and that's why they say brevity is the soul of wit. So they will say so much in very little words, unlike us, where we need to explain everything explicitly. So I'm just guessing when they say prasanna atma indriya mana swasya iti abhidhiyate. So ये सब उसको अंडरलाइन करके ही बोला होगा. Whereas हमारे साथ यही है, हमने ये देखा है कि the western sciences or the material world, material sciences जो भी हैं, ये कभी भी spiritual aspect तक आज तक touch नहीं कर पाए हैं. And this is very evident in WHO's definition of health as well. So I don't know, I just feel that. Even in The India, fact that people are we more all are interconnected and interdependent, I feel social health is also an entity beyond our local self of body, mind, and spiritual. Yeah, and when, I mean, that's why I'm saying when Atma can only be present when you have kind of covered all these aspects of a happy living, a happy life, then only you would be Prasanatma. And a happy life is when your family, your personal, your social, your emotional, mental well-being, everything has been taken care of. Then only our Atma can really be Prasanna. So probably he has covered it in a very subtle way. He has said all these things. Thank you. मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी. आपने ये बोला ना जो आयुर्वेद मेडिकल है WHO जिस मेरी आवाज इतनी साफ नहीं है. WHO जिस डेफिनेशन उसमें सोशल भी है. They have added spiritual also. Spiritual? But they are not. हाँ आ गया but they have added recently. But they are not sure what spiritual means. You know, they will think of the religion. इसका जो इसका जो इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का उनका रिलीजन डिफरेंट है. So that will not suit them. अब जैसे आपने बोला प्रसन्न आत्मा मना. I will tell you one more definition of health. That पहले बोलूँगा जो WHO की definition is very anemic as compared to Ayurvedic. प्रसन्न आत्मा मना उसमें है ही नहीं. Spirituality उन्हें लगाया but they don't know what it is. See, if you are able to work selflessly and enjoy it, that is prasanna atma. You are enjoying the work, then you are healthy. The sign of health. That work with enthusiasm, selflessly, and enjoy it. Enjoy the work. That's so yatra sukrito madanti. इसमें वेद मंत्र है. यत्र सुहार्दास्कृतो मदन्ति वो दिस विहाय योगम तन्वा सोया. वो जो स्वर्ग है धरती पे जहाँ आप काम करेंगे, not work, you enjoy the work, and that is इसमें आपके पिता है, आपके ये है, बच्चे हैं और grandchildren. That is स्वर्ग. Right. Work selflessly with enthusiasm. That's the mind, and enjoy it. That's Atma. Also, so that's other. So बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत सारे पॉइंट बोले. आहार निद्रा स्टार्ट किया. आहार निद्रा में भी बुद्धि ही एक को अधिक को विशेष हो. वो क्या बुद्धि. देखिए हमारी जो बुद्धि है ना प्रीफ्रंटल लोब वो बहुत हाईली डेवलप्ड है. वो लोअर एनिमल्स में नहीं है. कहीं है धर्मो एक को अधिक को विशेष हो. कहीं बोलते हैं बुद्धि एक को. बुद्धि एक को अधिक को विशेष. मैंने बोला ना, मैंने काफी वर्जन्स देखे इसके. तो बुद्धि, धर्म, ज्ञान, because I had to kind of tie a lot of
थिंग्स तो मुझे दोनों ठीक है, ज्ञान दोनों सबसे एप्ट दो, लगा। तो दोनों बुद्धि ठीक है। होगी तभी ज्ञान का हम Yeah. अर्जन कर पाएंगे। तो और कोई इस विषय पर? आइए हम 15 मिनट ध्यान उपासना का अभ्यास करते हैं। मैं टाइमर लगा लूं, फिर हम देखते हैं कोई प्रश्नोत्तर। हम आसन में बैठे हैं, अब 3 बार प्राणायाम करते हैं। प्रत्येक प्राणायाम में 4 चरण। श्वास को बाहर फेंकेंगे, श्वास को बाहर रोके रखिए, श्वास अंदर लेंगे, श्वास को अंदर रोकिए, ये एक प्राणायाम हुआ। अब दूसरा, इस श्वास को बाहर फेंकिए, बाहर रोकिए, अंदर लीजिए, अंदर रोके रखिए। तीसरा अंतिम प्राणायाम, बाहर फेंकिए श्वास को, बाहर रोके रखिए, अंदर लीजिए, अंदर रोके रखिए। ये हुए हमारे 3 प्राणायाम। अब ओंकार ध्वनि, प्रणव ध्वनि का 3 बार वाचिक जप। उसके बाद हम धारणा में जाएंगे, जहाँ ओंकार का मानसिक जप साथ में चलेगा, और कोई दूसरी चित्तवृत्ति नहीं आने देंगे। यदि कोई आ जाए तो एक सांस बाहर फेंक कर जो आपको प्राप्त होता है, एक रिक्त खाली चित्त की इस अवस्था, उसको प्राप्त कीजिए। आइए 3 बार प्रणव ध्वनि का वाचिक जप। ओम ओम ओम।
आइए, ये हमारा ध्यान उपासना का छोटा सा सामूहिक अभ्यास था। अब हम प्रश्नोत्तर काल में चलते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है, बहन प्रेम जी का है, दिखाता हूं मैं आपको, जो उन्होंने ग्रुप में रखा था। ये हमारे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में 18 जुलाई को उन्होंने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें अध्याय से प्रसंग है ईश्वर सिद्धि का। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं, पुरुष और प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए। तो ये जो शब्द हैं इनको समझना चाहती हैं। आइए हम सत्यार्थ प्रकाश में ये शब्द देख लें। तो ये सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास है, जहाँ ईश्वर और ईश्वर सिद्धि और ईश्वर से हमें वेद का ज्ञान, ये बातें 7वें समुल्लास में है। जो उन्होंने ये वाक्य लिखा है वो यहाँ पर है। कैसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको। तो ये जो जहाँ मेरा कर्सर हिला, यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए। अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है, वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है। देखिए, ये प्रसंग चल रहा है, या थोड़ा और पहले जाए, ये सांख्य के 5वें अध्याय के सूत्र है। ये मेरा जहाँ नंबर 1 लिखा है, जिसका भी अर्थ हमने देखा, ये 5वें अध्याय का मैं देख रहा हूँ 8वां सूत्र है। उसके बाद ये वाले सूत्र भी है, प्रमाणा भावात न तत्सिद्धि, संबंध अभावात न अनुमान। वो एक सांख्य का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ईश्वरा सिद्धि। ये पहले अध्याय का सूत्र है, जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो अब हम महर्षि दयानंद के ये 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो उनकी शैली है प्रश्नोत्तर की। प्रश्न उठाते हैं, इसको पूर्व पक्ष भी कह सकते हैं या जिज्ञासा भी बोल सकते हैं। जिज्ञासु का प्रश्न है। तो प्रश्न के रूप में लिखते हैं, ईश्वरा सिद्धे प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि, संबंध अभावात न अनुमानम। ये सांख्य के 3 सूत्र जिज्ञासु की तरफ से प्रश्न के रूप में है। फिर इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, प्रत्यक्ष से घट सकते से मतलब है जो घटित होता है। प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। ये जहाँ नंबर 5 है, यहाँ असल में 1 होना चाहिए था, तो उस 1 का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ। तो ये जो 2 है, इसका हिंदी अनुवाद कहते हैं, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते। देखिए, प्रत्यक्ष होता है ना, कई बार किसी ने देखा कि अग्नि में से धुआं निकल रहा है, तो इसका प्रत्यक्ष हुआ है। अब कभी ऐसा हो गया कि उसे धुआं दिख गया है, अग्नि नहीं दिख रही, तो धुआं देखकर उसने अनुमान किया कि अग्नि है। ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। ये प्रामाणिक बात है, लेकिन इस प्रमाण के पीछे पहले बहुत बार प्रत्यक्ष देखा जा चुका है, जब अग्नि और धुएं में एक तरह का संबंध था, है ना।
तो दूसरे सूत्र में वो बता रहे हैं कि जब पहले प्रत्यक्ष ही नहीं देखा अग्नि और धुएं का, तो आप उसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। और अनुमान में जो चीज होती है संबंध, इसको व्याप्ति भी कहते हैं कि संबंध क्या है, अग्नि और धुएं का संबंध। ऐसा तो हुआ है अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है, और जब भी धुआं है तो अग्नि अवश्य है। तो ये संबंध का यदि अभाव है तो अनुमान नहीं होता। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये पूर्व पक्ष की तरफ से आया, जिज्ञासु का प्रश्न है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष तो होता नहीं, और जब प्रत्यक्ष नहीं है तो कोई अनुमान भी नहीं बनेगा, अनुमान का संबंध नहीं बनेगा जैसा धुएं और अग्नि में है। तो हम अनुमान से भी ईश्वर को नहीं जान सकते, न प्रत्यक्ष जान सकते हैं न अनुमान से जान सकते। अब महर्षि दयानंद इसका उत्तर दे रहे हैं, इस शंका का उत्तर देते हैं। यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत का उपादान कारण है। यानी ये जो ईश्वर सिद्धि वाली बात कही है उसका प्रसंग बता रहे हैं कि सांख्य में वो इसलिए नहीं कहा गया है कि ईश्वर असिद्ध है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, है ना। उन्होंने सांख्य के जो रचनाकार हैं महर्षि कपिल, उनका इस सूत्र का अर्थात ईश्वर सिद्धि का उनका वो प्रसंग वो नहीं है कि ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ऐसी बात नहीं बोल रहे। वो बस बोल रहे हैं वहां पर पहले अध्याय में हमने भी ये अपने पाठ्यक्रम में ये सूत्र देखा है, और आगे कभी सांख्य का पूरा अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। तो इसके पहले आता है प्रत्यक्ष का जो विज्ञान होता है चित्त या बुद्धि की वृत्ति पर, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उसके भी दो रास्ते हैं, एक तो ज्ञानेंद्रियों से आता है वो होता है, और एक होता है संप्रज्ञात योग की अवस्था में योगी को चित्त पर कुछ फ्लैश आ जाता है ना। तो इसको उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है सांख्य में। फिर कहा है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष ऐसे नहीं होता है। वो ये नहीं कहे हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, वो कह रहे हैं ईश्वर का प्रत्यक्ष इस ढंग से नहीं होता है। किस ढंग से? कि वह चित्त पर अंकित नहीं होता है, न लाइव न हमें आंखों से चांदियों से हमें चित्तवृत्ति बनती है जो ईश्वर बताती, ईश्वर दिखाती हो, हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष कराती हो, और न ही संप्रज्ञात योग में, जैसे अभी हमने सभी जी से सुना कि ऋषियों को योग का या आयुर्वेद का ज्ञान, उन्होंने भी कहा लोग अपने अपने नाम से ज्ञान का कॉपीराइट कर रहे हैं आजकल, तो ज्ञान का मूल स्रोत ईश्वर है। तो ईश्वर हर मनुष्य को ज्ञान डायरेक्ट दे सकता है यदि उसने अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लिया। जब चित्त निरुद्ध अवस्था में हो जाता, ध्यान जब होता है उसको चित्त की एकाग्र अवस्था बोलते हैं, और समाधि बोलते हैं चित्त की निरुद्ध अवस्था, यानी चित्त जब ब्लैंक है। तो चित्त जब ब्लैंक है तो ईश्वर की कृपा से एक फ्लैश आता है जिसको प्रज्ञा का आलोक बोलते हैं, प्रज्ञा है ना, एनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो वो जो चीज प्राप्त होती है तो उससे हमें ईश्वर, उसके माध्यम से हमें ईश्वर किसी विषय का ज्ञान देता है। लेकिन चित्त एक माध्यम होता है, चित्त के ऊपर वो अंकित होता है जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है ना। तो महर्षि कपिल समझाते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हमें इंद्रियों से भी मिलता है और संप्रज्ञात योग में ईश्वर की कृपा से भी मिलता है। लेकिन इस तरह से जो चित्त पर ज्ञान मिलता है
उस तरह से हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर सिद्धि का यह अर्थ, पर लोगों ने फिर इसको खींचातानी करके महर्षि कपिल को अनीश्वरवादी भी बोल दिया, है ना। बहुत गड़बड़ हुई है पिछले 5-6 हजार सालों में। तो महर्षि दयानंद अपनी तरफ से सब जो भी अज्ञान का अंधकार आ गया था, प्रश्न उठाकर उनका संशय का निवारण करते। तो आइए उनके उत्तर को हम सुनते हैं। यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, मतलब ऐसी बात नहीं कही है। और न ही ये कहा गया है कि ईश्वर जगत का उपादान कारण। देखिए, कोई भी चीज बनती है, जैसे लकड़ी की मेज है, तो उसका एक उपादान कारण होता है जिस मटेरियल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो लकड़ी मेज का उपादान कारण, या जो मिट्टी का घड़ा है उसका उपादान कारण है मिट्टी। लेकिन मिट्टी अपने आप ही घड़ा नहीं बन जाती, लकड़ी अपने आप ही मेज नहीं बन जाती। एक मनुष्य उस पर काम करता है, कर्म करता है। तो जो मनुष्य कर्म करता है उसको निमित्त कारण बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉज या एजेंटल कॉज या एफिशिएंट कॉज बोलते हैं। उपादान कारण को मटेरियल कॉज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो हर वस्तु के पीछे एक से अधिक कारण होते हैं। तो ये कह रहे हैं महर्षि दयानंद कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता नहीं है, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। ईश्वर सिद्धि में ये कहा जा रहा है कि चित्त वृत्ति के रूप में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता। और दूसरा एक अर्थ ये भी निकल जाएगा कि ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है, यानी ईश्वर ही ट्रांसफॉर्म होकर जगत नहीं बना है। प्रकृति जो एक तत्व है उसके परमाणु बनते हैं, फिर उससे आगे आगे सृष्टि बनती है ना। जैसे लकड़ी से मेज बनी, मिट्टी से घड़ा बना। तो ये जो दृश्य जगत है, जो हमें इतना बड़ा संसार दिख रहा है और हमें अपना शरीर भी दिख रहा है, यह शरीर और बल्कि हमारा जो मन भी है, ये सब प्रकृति के तत्वों से बने हैं। मन सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा शरीर स्थूल है, वो हमें दिखाई देता है, और स्थूल जगत की दूसरी चीजें भी दिखाई देती। तो उनके इस वाक्य का यह अर्थ है कि ईश्वर सिद्धि वाला जो सूत्र है प्रश्न में पहला, उसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और वो कहते हैं न ही इस सूत्र से यह समझना चाहिए कि ईश्वर जगत का उपादान कारण। फिर वो आगे अपनी बात जोड़ रहे हैं, और पुरुष से विलक्षण, अब पुरुष शब्द पर विचार कर रहे हैं कि ईश्वर भी पुरुष है और हम सबका आत्मा भी पुरुष है। तो कह रहे हैं पुरुष से विलक्षण, अर्थात सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष। तो हम लोग भी पुरुष हैं, लेकिन ईश्वर हमसे विलक्षण है। किस लिए विलक्षण है? कि वह हर दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त है ना। उसमें सब तरह की इन्फिनिटी है, किसी भी तरह के की अपूर्णता नहीं है। तो अब बता रहे हैं कि उसको पुरुष कहते हैं, और सांख्य में पुरुष शब्द आया है, इसलिए बता रहे हैं कि परमात्मा भी पुरुष है और हम भी पुरुष हैं। और हम क्यों पुरुष हैं? तो बताया, शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है। तो ये निरुक्त में वेद में आए शब्दों की, क्योंकि वेद में पुरुष सूक्त आता है, स्वस्थ शीर्षा पुरुष, तो ईश्वर के लिए भी पुरुष आया है, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए भी पुरुष आया है। तो उस पुरुष जीव, जब वेद में जो प्रमुख शब्द है उनके अर्थ निरुक्त और निघंटु में बताए गए।
तो नियुक्त में ये आया है कि जो पूर्व में शयन कहता है उसे पुरुष कहते हैं। तो ये जो हमारा अन्नमय कोश है, जो हमारा पुर है, इसको एक अथर्ववेद के मंत्र में अयोध्या पूजी बोला गया है। देव पूजी अयोध्या पूजी। तो हम सबका निवास देव पूजी अविद्या पूजी अयोध्या पूजी में है। तो इस पुर में हम शयन करते हैं, इसलिए हमारा जो जीवात्मा है उसका भी नाम पुरुष है, और ईश्वर भी पुरुष है कि वह पूर्ण पुरुष है। अब वो आगे कहें, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है, ये जो दूसरा और तीसरे के साथ सांख्य के सूत्र आए ना, तो उस प्रसंग में अब आगे पीछे के 3 सूत्र उन्होंने महर्षि दयानंद ने लिखे। प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति। तो इसका वो अनुवाद अब कर रहे हैं। यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए, अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर काय रूप में संगत हुई है, वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए। पहले ये दूसरी पंक्ति को हम समझ लेते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो वही मिल कर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, तो यह पूरा बड़ा जगत हमें दिख रहा है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, वायु है, जल है, हमारा शरीर है, ये सब दृश्यमान जगत है। यह प्रकृति से बना है। प्रकृति एकदम सूक्ष्म ही होती है, लेकिन प्रकृति में यह प्रकृति की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वह सूक्ष्मता से स्थूलता को प्राप्त कर लेती है ना। वो माइन्यूट भी बहुत है, लेकिन बहुत बड़ी सूर्य चंद्र तारे बहुत बड़े बड़े हैं, वैसे बड़ा पिंड भी बन जाती है ना। तो कार्य रूप, कार्य कहते हैं काम करना नहीं, कारण और कार्य है ना। तो सूक्ष्म प्रकृति कारण है और कार्य रूप ये जगत है। अब इसमें क्या है, उन्होंने एक शब्द लिखा है, संगत हुई है, क्योंकि एक से अधिक परमाणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं, संग आ जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, है ना। अब उन्होंने कहा कि प्रधान, अब इस सूत्र का हम अर्थ देखते हैं। प्रधान प्रकृति की जो मूल अवस्था है उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान शक्ति योगात, ये एक पद है। इसके बाद एक पद है चेत, फिर एक पद आया संगापत्ति। संगापत्ति ऐसे एक पद है, लेकिन इसमें भी संधि है। क्या संधि है? संग और आपत्ति। तो चेत का अर्थ होता है प्राय कि यदि ऐसा कहो तो, है ना। तो अब ये कपिल ऋषि का सूत्र है। कपिल अपने समय में वो ये सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं, यदि तुम ऐसा कहो कि प्रधान की शक्ति के योग से अब ईश्वर से जगत बन जाता है ना। यदि तुम ऐसा कहो कि ईश्वर के साथ प्रधान की शक्ति का योग हो गया, है ना, ईश्वर के साथ जुड़ गई, है ना, तो यह ठीक नहीं है, आपत्ति है ना। आपत्ति किसकी बात की है? देन आपत्ति यह है कि ईश्वर असंग नहीं कहलाएगा, फिर वो संग हो जाएगा। यदि ईश्वर से प्रकृति चिपक जाए तो ईश्वर असंग नहीं रह सकता, वह प्रकृति के गुण अपना लेगा। अब इसी की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। क्या हो जाएगा कि प्रकृति जैसे सूक्ष्म से स्थूल बन जाती है, तो ईश्वर भी स्थूल बन जाएगा, है ना। और ईश्वर बन जाएगा, स्थूल बन जाएगा, तो क्या है,
अब वो बताया अगले सूत्र में, सत्ता मात्रा चेत सर्वेश्वयम। फिर तो जहां जहां प्रकृति की सत्ता है, प्रकृति सब जगह है, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, वैसे प्रकृति भी विभू कहलाती। क्योंकि हम दूर दूर तक देखें, चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, रात के आकाश में तो बोलते हैं ना, इतने बिलियन लाइट ईयर्स, कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतनी सारी दूरियां हैं कि प्रकाश को, जिसको चलने में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सूर्य से प्रकाश यहाँ आने में लगभग 8-9 मिनट लगते हैं। अब कहीं से प्रकाश आता हो, 1 वर्ष लगे, तो आप सोचिए सूर्य कितनी दूर है कि वहां से 9 मिनट में आएगा। और एक तारा कितनी दूर है कि वहां से 1 वर्ष पहले का प्रकाश आ जाए। अब 1 वर्ष नहीं, हो बोला 8 बिलियन, 8 अरब वर्ष, यानी ये दूरियां हम सोच ही नहीं सकते कितनी दूर है ना। सूर्य इतनी दूर है कि 9 मिनट। अब इतनी दूर आप समझिए कि 1 वर्ष लगता हो, फिर 1 वर्ष नहीं बोले वो लोग, बिलियन लाइट ईयर्स, यानी 100 करोड़ वर्ष लगते हैं वहां से प्रकाश को आने में। इतनी दूर दूर के तो नक्षत्र तारे उन्होंने देखे तो क्या है, पकड़ लिए। तो इतनी दूर तक प्रकृति फैली हुई है, तो प्रकृति से ही बने हैं नक्षत्र तारे, ये सारा जो आकाश गंगा है, क्या क्या है ना। तो वो कह रहे हैं, ये कपिल का वक्तव्य है, प्रधान शक्ति को ईश्वर से हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ईश्वर फिर असंग नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि वो जुड़ गया, तो जहां जहां प्रकृति है, सत्ता मात्रा अचेत, वहां वहां ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, वहां वहां ईश्वर का ऐश्वर्य प्रकृति को भी प्राप्त हो जाए। अब प्रकृति को भी प्राप्त हो जाए तो सारी प्रकृति सब जगह चेतनवत व्यवहार होगा। तो ये ईंट पत्थर चेतन होने चाहिए, है ना, क्योंकि ईश्वर में चेतन है, चेतना है। तो वो जिज्ञासु को समझा रहे हैं कि तुम्हारी इस लॉजिक में दम नहीं है, नहीं तो जगत में हर चीजें चेतनवत व्यवहार करने लग जाएं, सब में सर्वेश्वर आ जाए ईश्वर का। ईश्वर सर्वव्यापक है, और ईश्वर का की जो चेतना है वह प्रकृति में ट्रांसमिट नहीं हो जाती, वो अपने पास रखता है। तो ये ईश्वर का प्रकृति से जो एक रिलेशनशिप है, उसकी बारीकी हमें समझाई जा रही है ना, कि प्रकृति उससे चिपक नहीं गई है क्योंकि वो असंग है, लेकिन अब आगे आएगा बहुत, वह निमित्त कारण बनकर प्रकृति से ये जगत बनाता है ना। तो उसका अब एक सूत्र आता है जो यहाँ नहीं है, ये प्रधान वाले से पहले का है, पर अभी हम महर्षि दयानंद के ये प्रकरण को समाप्त कर देते हैं। तो अब आप पहले सूत्र का ये जो 1 लगा है ना संख्या, उसका अर्थ समझिए। यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए, है ना। इसकी मैंने व्याख्या कर दी। फिर इन्होंने इसका और थोड़ा विस्तार दिया कि जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है, यानी स्थूल हो गई है, वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं, किंतु निमित्त कारण है, यानी ईश्वर ही ट्रांसफॉर्म होकर जगत नहीं बनता। ईश्वर जगत प्रकृति को ट्रांसफॉर्म करके जगत बनाता है। अब ईश्वर प्रकृति को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, उसके तो हाथ पांव नहीं है जैसे कुम्हार और बढ़ई के हाथ पांव है। तो यह एक बहुत ही विलक्षण रिलेशनशिप है, इसको महर्षि कपिल समझाना चाह रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ताकि ये पैराग्राफ समाप्त हो जाए। तो यहाँ जो सत्ता मात्रात्व वाला था सूत्र, उसका अनुवाद महर्षि दयानंद कहते हैं, जो चेतन से जगत की उत्पत्ति हो
तो जैसा परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य युक्त है, वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिए, सो नहीं है। यानी समस्त सृष्टि चेतनवत व्यवहार नहीं कर रही। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं, किंतु निमित्त कारण है। फिर तीसरा सूत्र का, श्रुति भी, वेद भी इस जगत को प्रधान का कार्य बताती है। यानी प्रधान ही कारण से कार्य बना है। प्रधान यानी मूल प्रकृति ही अपना रूपांतर करके जगत बन गया है, लेकिन वो स्वयं नहीं बनती, वो जड़ पदार्थ है। ईश्वर उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाता है। अब यहाँ श्रुति का अर्थ उन्होंने उपनिषद किया है। श्रुति में वेद और उपनिषद दोनों आ जाते हैं। तो दोनों के, वेद और उपनिषद में जो शब्द लिखे होते हैं हम उसको मंत्र बोलते हैं, श्लोक नहीं बोलते। गीता में श्लोक है, वेद और उपनिषद के मंत्र हैं, तो दोनों को श्रुति कहते हैं इस बात, क्योंकि उपनिषद भी प्रधान ही को जगत का उपादान कारण कहती है। तो ये एक प्रकरण था। क्या समझ में आया आपको थोड़ा कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं ये ऐसा सोच रही थी उस टाइम जब मेरे को ये समझ में बात नहीं आ रही थी। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, एक एक शब्द का आ गया। एक तो मेरा जो संगा अपत्ति वाला पॉइंट था, मैंने संगापत्ति को खाली संग ही लिया था, जैसा कि आपने अब समझाया कि इससे संगा अपत्ति, तो मैंने संगापत्ति को संग ही लिया। तो उस टाइम मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि संग, क्या हम ईश्वर का संग नहीं समझते जब हम कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है? और दूसरा ये है कि हमारी बुद्धि भी जो है वो सत्व तत्व से बनी है, प्रकृति से बनी हुई है, तो उसमें ज्यादा सत्व गुण ज्यादा है, सत्व तत्व ज्यादा है। तो उसको ईश्वर की तरफ से प्रेरणा मिलती है, और कण कण में भी ईश्वर है, तो इसको ईश्वर का संग नहीं माना जाना चाहिए। तो संग का अर्थ है कि समपूर्वक गमन करना, यानी इसीलिए हिंदी में मैंने उसको कह दिया चिपक जाना कोई। अच्छा अच्छा। तो वो चीज चिपकती नहीं है उसको, है ना। तो अब उसकी ऐसा डिजाइन, उसकी ऐसी व्यवस्था है कि हमारा जो आत्म तत्व है पुरुष, हमारे पुरुष को जब वो महत पार्टिकल से जोड़ता है तो हम भी असंग हैं, तो हमें भी उससे चिपकते नहीं है। वहां एक गांठ सी बांधी गई है, एक चुंबक तो की तरह जो बात कर, चुंबक की बात करते हैं वही है जी। जो आपने चुंबक का एक दिया था कि जैसे नजदीक आने से नहीं, अभी वो बात नहीं हो रही है। अच्छा, वो आपने चेतना बुद्धि वाली आती है बात उसमें। कही। हाँ, बुद्धि में संग आ चुकी है ना। अब ये जो बुद्धि का मेरा संग है, अब क्या है, ये असंग जो हमारा गुण है, ईश्वर भी असंग है, जीवात्मा भी असंग है। अब आप कहेंगे फिर ये बुद्धि हमारे से कैसे चिपक गई है? बुद्धि चिपकी नहीं है, जोड़ी गई है। तो ये हमारा बंध है, इसको बंध कहते हैं। हम बद्ध जीव हैं क्योंकि बुद्धि के साथ हमें बांधा गया है ना। बांधा गया हमें यह है कि इस बंध को खोला भी जा सकता है, हम खोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये परमानेंट ऐसा है, हमें जोड़ चिपका नहीं दिया गया है ना। अब ये जो बद्ध है, ये जो बंधन है पुरुष का बुद्धि के साथ, इस बंधन के दो कंसीक्वेंस है ना। दो कंसीक्वेंस, ये ईश्वर की व्यवस्था है। अब दो कंसीक्वेंस क्या है? अब ये जो बुद्धि है, तो कहने को महत्व का पार्टिकल, जैसे आपने ही कहा, एक विशेष महत्व पार्टिकल है जो सत्व प्रधान है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो बंधन है इसके दो परिणाम होते हैं।
परिणाम नंबर 1 है कि बुद्धि पर जो भी अंकित होता है उसका मुझे बोध हो जाता है। भोग नहीं है, बोध है, ज्ञान हो। तो ये बंधन के 2 कंसीक्वेंस हैं कि बुद्धि पर जो भी आया वो मुझे चाहे स्वप्न भी आया, मुझे रजिस्टर्ड हो जाता है ना। अब वो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, या हमारी मेमोरी से कुछ आया, जहां से भी आया, बुद्धि पर आ गया है तो मुझे पता चल गया, मुझे उसका अवश्य बोध हो गया। अब ये कंसीक्वेंस नंबर 1 है। अब कंसीक्वेंस नंबर 2 है जो आपने अभी बात कही चुंबक वाली। उसमें असल में चेतना ये पुरुष की है, पुरुष की चेतना। अभी मैं हाथ हिला रहा हूं, है ना, तो आप कहेंगे ये मनुष्य चेतन है, इसमें अभी चेतना है, इसका हाथ हिल रहा। तो हाथ का जो हिलना हो रहा है यह एक चेतनवत व्यवहार है ना, चेतनवत। ये चेतना नहीं है हाथ की, हाथ की। अब ये हाथ में ये चेतना कहाँ से आ गई कि हाथ चेतनवत व्यवहार कर रहा है? तो इसका जो कंसीक्वेंस नंबर 1, जो बंधन का कंसीक्वेंस नंबर 2 है, दूसरा जो परिणाम है वो है जो आत्मा का चैतन्य गुण है वो इसको बुद्धि को ट्रांसमिट हो जाता है। यानी बुद्धि का जो बुद्धि व्यक्ति का ज्ञान पुरुष को हो जाता है, पुरुष की जो चेतना है उसको बुद्धि बॉयो कर लेती है। अब कैसे बॉयो करती है तो समझाते हैं कि चुंबक के पास जो लोहा है जिसको चुंबक ने खींचा अपनी तरफ, एक लोहे की कील को खींचा है चुंबक, है ना। अब उस लोहे की कील में भी चुंबकत्व तो आ जाता है कि वो दूसरी कील को भी खींच सकती है। तो जैसे पहली कील में चुंबकत्व तो आ गया, वैसे ही बुद्धि में आत्मा का चैतन्य आ जाता है। वो चेतना नहीं है उसमें, पर वो चेतनवत व्यवहार करने लग जाती है। वो चेतनवत व्यवहार करने लगती है, वो अगला अहंकार थोड़ा चेतनवत व्यवहार करता है, फिर मनस थोड़ा कहता है, फिर इंद्रियां कहती हैं थोड़ा, फिर शरीर कहता है। पर शरीर के बाहर ये ईश्वर की व्यवस्था है। जब माँ के गर्भ में मेरे सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये स्थूल शरीर का लेप चढ़ रहा था, तो वो जो कनेक्टिविटी है ना, बड़ी विचित्र सी है। विचित्र सी कनेक्टिविटी में क्या हो गया कि यह शरीर मेरे साथ बड़ा इंटीग्रल हो गया, मैं हूँ। अब एक दिन जब मैं इसमें चला जाऊंगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा परमानेंट। और जब तक मैं इस शरीर में हूँ, इसीलिए इसको नाम दिया अयोध्या पूजी देव पूजी, और इसीलिए अभी आयुर्वेद की इतनी बातें हुई हैं। ये ही हमारा एकमात्र साधन है हम मोक्ष को प्राप्त करने का, इत्यादि इत्यादि। तो इस शरीर की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस शरीर को ईश्वर ने हमारे मनोमय कोश के साथ एक विचित्र ढंग से जोड़ा हुआ है कि शरीर जो आत्मा और बुद्धि जैसे बड़े वैसे जुड़ गई हैं, वो तो परमानेंट लगभग जुड़ गई हैं कि जीव का पुनर्जन्म में, आवागमन में भी वो जुड़ी रहती है। लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में आया तो कुछ इस ढंग से अन्नमय कोश का परत चढ़ रही थी कि वो एकदम हम नहीं समझ सकते ये सब बातें, है ना। इसका आशय है कि वो जो पुरुष का चेतना है वो यहाँ तक है कि अब मैं अपने इस कप को उठा सकता हूँ, पर हाँ, मैं अपनी उंगलियों से चेतना कप में नहीं प्रवाहित कर पा रहा। तो वो जो ईश्वर की व्यवस्था है उसकी सीमा है मेरी उंगलियां। मैं उंगली से इस कप को तो उठा सकता, और इस कप के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वो जो चुंबकत्व था, वो चुंबकत्व की बॉर्डर लाइन है मेरी उंगलियां। अपना शरीर। अब वो चुंबकत्व इस कप में नहीं आ रहा,
अब ये अलग बात है, इस कप से मैं किसी चीज को धक्का दे, लेकिन जो मेरी चेतना यहाँ तक थी कि मैं हाथ हिला सकता हूँ, ये सब है, मैं कप को छू भी लूं तो चेतना वहां ट्रांसमिट नहीं हो सकती है ना। और ये चेतना भी टेम्परेरी है। रात को जब मैं जाता हूँ सोने, तो चेतना को मैं विड्रॉ कर लेता हूँ अंदर, है ना। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति बनती है। तो हम मूल में आते हैं, तो पुरुष और बुद्धि का जो गांठ बंदी है, वो एक बड़ी विचित्र विलक्षण गांठ है। उसके दो कंसीक्वेंस हैं कि बुद्धि जो मुझे बताती है उसका मुझे बोध होता है, और मेरी जो चेतना है वो बुद्धि के ऊपर उसकी छाया पड़ जाती है, और फिर वो थोड़ी आगे आती। तो ये है हमारा और प्रकृति का इंटरेक्शन। कई बार हम प्राण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, डेलीगेशन वगैरह। तो क्योंकि प्राणमय कोश से ही हमारा अन्नमय कोश चलता है, प्राणमय कोश जो गतिविधि हमारी सुषुप्ति में भी होती है, वो हम नहीं कर रहे, वो ईश्वर की प्राण शक्ति। अब ईश्वर हमारे इस शरीर में कोने में बैठा, वो तो सर्वव्यापक है। वो हमेशा कुछ ये एक ऐसा इंजन चलाता रहता है कि मैं जब चाहूं अपने शरीर से व्यवहार कर सकूं। वो मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ईश्वर प्राणमय कोश को चला रहा है। आप समझे ना, ये बड़ी इंटिकेसी है। जो बॉडी और माइंड का जो एक इंटरफेस है, वो हम बहुत ही मुश्किल है समझना। और वहीं पर ईश्वर कॉन्स्टेंटली 24/7 वहां विद्यमान होकर कर रहा है काम, है ना। तो सोते हुए में भी हमारे प्राण चलते हैं, ताकि जब मैं जग जाऊं तो बॉडी डोमेन से काम ले सकूं, है ना। तो वो जो प्राण चल रहे हैं, इसी को हमने कई बार समझाने की कोशिश की है। उसकी तरह से जब सांख्य का पूरा अध्ययन करेंगे ना, तो एक सूत्र आएगा, तीसरे अध्याय में आता है, जीव में उस वो अभी क्या है, वो प्रकृति से काम लेता है ना, वो भी प्रकृति से काम करता है। तो उसकी जो सामर्थ्य है, वो अपनी वो सामर्थ्य कुछ अंश में हमारे अंदर डेलीगेट कर देता है। अब ये डेलीगेशन कैसे है? ये प्राण के द्वारा। जब प्राण चल रहे हैं, तो अब मैं अपने शरीर को, शरीर में हम प्रकृति से बना है, इसको हिला पा रहा हूं क्योंकि मेरे प्राण चल रहे हैं, है ना। तो ये जो प्राण है, वो ईश्वर का मैकेनिज्म है टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। देखिए, उसकी जो प्रकृति पर अथॉरिटी है ना, उसको कहते हैं अधिष्ठातृत्व। वो अधिष्ठाता है, प्रेसाइडिंग एंड। और वो क्या कहता है, मुझे जब जीव के रूप में भेजा, तो जब प्राण चल रहे हैं बाई देखिए, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर का प्राण सब जगह चल रहा है। मैं थोड़ी देर में वो बताऊंगा कि डेड बॉडी में भी प्राण चल रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो मैं लिविंग बीइंग हूं, तब ईश्वर इस शरीर के अंदर बहुत कुछ हलचल करता रहता है, मुझे मालूम हो या ना मालूम, है ना। एक बार कविंद जी ने एक डायग्राम भेजा ना, वीडियो, शरीर के अंदर कितनी सारी मशीनें चल रही है ना। तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, इतना कुछ हो रहा है। वो सब ईश्वर की प्राणिक शक्ति है। उसका एक उद्देश्य है कि मैं शरीर और मन से मनचाहा व्यवहार कर सकूं। तो वो जो ईश्वर जब प्राण चला रहा है, ये इट इज हिज मेथड ऑफ डेलीगेशन हिज अथॉरिटी ओवर मैटर। एक अंश में हमारे पास भी अब अधिष्ठाता बन गए ना, हम हाथ को ऊपर नीचे ले आ सकते हैं। और हमारे पास भी मैटर के प्रति एक अधिष्ठातृत्व, डेलीगेटेड अथॉरिटी आई है। ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, ईश्वर ने डेलीगेट की है मुझे। अब समझिए,
ईश्वर ना कहे समझिए एक क्षण में या निधन हो जाए, समझिए मैं मर गया, इस समय मैं लुढ़क के गिर जाऊंगा, मैं लुढ़क के गिर जाऊंगा, फिर उस समय भी मेरे शरीर में कुछ होता रहेगा। देखिए प्रकृति की कोई चीज एक वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। अब उस समय बॉडी डिकम्पोज करने लग जाएगी, है ना। बोलचाल में हम कहेंगे इस व्यक्ति के प्राण नहीं, तो ईश्वर की प्राणिक शक्ति काम कर रही है कि बॉडी को डिकम्पोज कर रही है, वो भी ईश्वर की प्राणिक शक्ति है। और अब वो ईश्वर की प्राणिक शक्ति में ये डेलीगेटेड शक्ति नहीं है, आप समझ रहे हैं। देखिए ईश्वर इस शरीर में जब ये डेड बॉडी हो जाएगी तो भी काम करेगा वो तो, और वो जो भी काम कर रहा है वो ईश्वर की प्राणिक शक्ति है। और इस समय वो अपनी प्राणिक शक्ति को एक डायरेक्शन दे रहा है कि हरिश्चंद्र के पास मैटर के प्रति अथॉरिटी आ जाए। अब डेड बॉडी में तो वो हरिश्चंद्र है ही नहीं, तो वहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ईश्वर की अथॉरिटी हमेशा सब जगह है। समझ रहे हैं ना। तो मैटर में जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है वह ईश्वर की मैटर के प्रति अधिष्ठातृत्व है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। हमें जब वो जीव के रूप में इस संसार में भेजता है तो एक अंश में हमें भी मैटर के प्रति, प्रकृति के प्रति अथॉरिटी देता है। वह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का माध्यम है हमारा प्राणमय कोश, आप समझे। अब हमारा प्राणमय कोश में ईश्वर का ही प्राण है, तो ईश्वर का प्राण उसने ऐसे दिया है जैसे पिता पुत्र को कुछ दे रहा है, जो भी है डेलीगेशन है। क्योंकि ईश्वर का प्राण हमेशा आएगा, डेड बॉडी में भी आएगा, और वहां वो डेलीगेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैं वहां से निकल चुका हूं। तो ये चेतन और प्रकृति का जो व्यवहार है बहुत ही विलक्षण। अब ईश्वर के साथ प्रकृति असंग है तो चिपक नहीं है, लेकिन उसके जैसी उसकी इच्छा है, क्योंकि वो भी सर्वव्यापक है, वो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति ईश्वर के अंदर नहीं है ना। ईश्वर अति सूक्ष्म है, तो वह प्रकृति के परमाणु में छोटे छोटे पार्टिकल में गति देता है, ये उसकी प्राणिक शक्ति। देखिए जहां भी गति है ना, अब ये कप यहाँ मेरा खड़ा है, इस मटेरियल कप में अपनी गति कभी नहीं आ सकती, है ना। हमारे घर में कुर्सी कहीं पड़ी है, वो वहीं पड़ी है। एक चेतन प्राणी ही अप्लाई करता फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से बल प्रदान करने से गति प्राप्त होती है ना, कोई भी। अब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में गति है, सूर्य और तारों में गति है, ये तो मनुष्य नहीं कर रहा कोई, तो ईश्वर सब जगह गति कर रहा है, यह उसकी प्राण शक्ति है ना। जब वो मूवमेंट डालता है, गति डालता है, और गति हमारे शरीर में वो ऐसे ढंग से कर रहा है, ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क काम कर रहे हैं, हमारा पंपिंग हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से श्वास अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। ये हमारी वैदिक चिंतन में अपने आप कुछ नहीं होता, या तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो ईश्वर कह रहा है, सीधी सी बात। चलिए ये वैसे जटिल विषय है। थैंक यू आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने जो नोटिस किया है कि सत्यार्थ प्रकाश, अब मैं फिर से 7th चैप्टर पढ़ रही हूँ, पर पदे पदे दिमाग में फिर आता है कि क्या मुझे यहाँ तो लगता है कई बार के अरे ये बात तो मैंने अब पहली बार देखी है, चाहे कि मैंने 7वां चैप्टर शायद काफी बार पढ़ा है। मैं नहीं कहती मुझे कोई इसका ज्ञान हुआ है, पर अभी जब पढ़ रही हूँ तो जो प्रश्न उठ रहे हैं वो अब उठ रहे हैं, पदे पदे मुझे रुकना पड़ रहा है और सोचने के लिए। कई बार समझ आता है, कई बार लगता है अभी मेरे सामने कोई हो तो मैं उससे पूछूं, पर फिर बाद में थोड़ा भूल भी जाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
शायद अब पढ़ती पुढ़ती और भी छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आचार्य जी समय हो गया है। बहुत मैं बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है आचार्य जी। परसों इंग्लिश की क्लास में आपने सांख्य का चित्र दिखाया था और मैंने पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन महत का देखा। वो आपने लिखा है ग्रेट प्रिंसिपल। हाँ, उसका क्या अर्थ है आचार्य? मतलब इंग्लिश में मैंने कहीं पढ़ा है, इंग्लिश वालों ने, किसी ने लिखा है, गलत अनुवाद भी नहीं है, महत ग्रेट प्रिंसिपल के रूप में। दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द होल यूनिवर्स। वहीं से सब चीज शुरू हुआ है। तो प्रिंसिपल सिद्धांत शब्द से है या वो जो प्रधानाचार्य टाइप का प्रिंसिपल होता है? एक तरह से आप स्ट्रैटम प्रधान। जैसा समझ सकते हैं, जो एक जैसे माला के अंदर एक धागा है, यानी जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, मुख्य, जिसके ऊपर सारा कुछ जगत टिका हुआ। ऐसे तो मूल प्रकृति पर टिकी हुई है, और मूल प्रकृति कहलाती है अव्यक्त है। तो व्यक्त होने पर पहला जो उसका कार्य है वो महत कहलाता है। तो नाम भी इसका महत है, ये महान है। तो ऋषियों ने भी इसको बहुत मान दिया है। तो महत को महान, महान को ग्रेट प्रिंसिपल कह दें तो अच्छा ही है, गलत तो नहीं लगा मुझे। नहीं, वो नया शब्द था, हाँ, ग्रेट प्रिंसिपल। तो और पहली बार मैंने देखा वो परसों। हाँ। सांख्य मैं कभी इंग्लिश में भी लिखूंगा तो मुझे भी ये सब सोचना पड़ेगा कि क्या शब्दावली ली जाए। अभी तो हिंदी वाला ही काम चल रहा है। आपने बहुत अच्छा समझाया पुरुष और प्रकृति का। आज मुझे समझ आया, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी बोलती थी पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना। तो हाँ। आज वो कनेक्टिविटी समझ आई है कि पत्ता अपने आप से नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना। तो आपका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, आपने जो अभी आचार्य जी क्या आपने अभी बोला वो अभी रिकॉर्डेड किया आपने? तो आप इतना अच्छा समझा रहे थे। डिड यू रिकॉर्ड इट आचार्य जी? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। It was such a wonderful explanation, like we cannot even fathom about it. एक अच्छी रेसिपी भी रिकॉर्ड हुई है, गाजर और मूली की, और उस पर आटा पड़ा है, बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी बीच में। ईरानी जी आप मैं ना मॉर्निंग में लेट हो जाता है खाने का, मैंने कुछ खाते नहीं मॉर्निंग में, तो मैंने आटा गूंद के रख दिया कि चल बाद में बना दूंगी। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, मैं कम से कम रिकॉर्डिंग तो बंद कर देता हूँ कि एक दो बातें वैसी हैं। क्या हुआ?